Assalamu alaikum everyone. Today we discuss smart syllabus of chemistry class 9. Here is a syllabus of smart syllabus of chemistry. Here I am presenting a smart syllabus of chemistry unit 1, that is fundamental of chemistry. These are the topics which are included in smart syllabus. Now I am showing you the smart syllabus of unit 2. Here is unit 3. Unit 3 is periodic tables and periodicity of properties. Unit 4 is structure of molecules. Unit 5 is physical states of matters. Unit 6 is solutions. Unit 7 is electrochemistry. And Unit 8 is chemical reactivity. According to SMART syllabus, I am presenting a pre-board exam for the chemistry SMART syllabus of whole book. Here is I have two versions of paper in English medium, also in Urdu medium. The first MCQs is example of diatomic molecule is, that is HCl. The next is number of protons in oxygen is 8. Third one is n shell में इलेक्ट्रॉन की तादाद 32. Who discovered atomic number? H. Moseley. Ionization energy of sodium is 496 kilojoule per mole. Covalent bond involves the sharing of electron. Which type of force is present in hydrogen bonding? That is intermolecular force. I am showing you both medium, Urdu and English. The next MCQ is constant factor in Boyle's law is temperature. Which one of the following is a heterogeneous mixture? That is milk of magnesia. Which one of the following is not an electrolytic cell? And that is a galvanic cell. And the next is the heaviest metal is osmium. Which of the following is brittle? And that is sodium. Here I am presenting a 12 MCQs. The first two MCQs from unit 1. The third MCQs from unit 2. Fourth and fifth MCQs is from unit 3. 6 MCQs is from unit 6 and 7. Both MCQs are taken from unit 4. 8 MCQs is taken from unit 5. 9 is taken from unit 6. 10 is taken from unit 7, and 11 and 12 both are taken from unit 8. That is objective type. Now I'm presenting a subjective portion. In subjective portion, we have 48 marks and 3 portion of short questions. In first portion, part 1, in each section, in each part, question number 2, question number 3 and 4, we take 5 short questions. We have given 8 questions and we will solve 5 questions from each section. First of all, unit 1, 2 and 3, I will take a whole section of question number 2. क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर. कंपाउंड और मिक्सचर वाला जो ये है ये क्वेश्चन यूनिट 1 में से है और ये आपका बुक के पेज नंबर 9 में से है. इंग्लिश के बुक के पेज नंबर 9 में इसका आंसर है, उर्दू के बुक के पेज नंबर 10 में है इसका आंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला. एम्पेरिकल फार्मूला भी यूनिट 1 से लिया गया है और ये उर्दू की बुक के पेज नंबर 14 पे इसका आंसर है और इंग्लिश की बुक के 12 पेज पे आंसर है, अगर आप लोगों को ऐसे याद नहीं भी है तो. स्टेट द रीजन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ कंपाउंड. ये भी यूनिट 1 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज. तो ये यूनिट 2 में है, यूनिट 2 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 है. नेक्स्ट हमारे पास है जी कि
अ पेशेंट हैज़ गटर, हाउ विल इट बी डिटेक्टेड। अच्छा जी, ये अगर बीमारी है तो कैसे इसको तशख़ीस की जा सकती है, ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। और नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये आपका जो बुक है इंग्लिश की बुक, उसमें टॉपिक है आपका जो पीरियोडिक टेबल वाला है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसी के स्टार्टिंग की लाइंस हैं जिसमें मेंडलीव के बारे में बताया गया थोड़ा बहुत। और फिर पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो उसी टॉपिक में से ही ये डिफरेंस लिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई द साइज़ ऑफ एटम डज़ नॉट इंक्रीज़ रेगुलरली इन पीरियड। तो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये यूनिट 3 में है। इसमें इंग्लिश की बुक का पेज नंबर 53 है और उर्दू की बुक का पेज नंबर 64 है। ये आंसर्स यहाँ पे मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ये उर्दू में भी आप देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो यूनिट 4, 5 और 6 में से लिए गए हैं। यूनिट 4 में से लिया गया है जी 3 क्वेश्चंस। पहला है वाई HCl हैज़ डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आपका क्वेश्चन बुक में से एक्सरसाइज में से ये दिया गया है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। फिर है डिफाइन मेटालिक बॉन्ड उर्दू के बुक के पेज नंबर 77 पे इसका आंसर है और इंग्लिश की बुक के पेज नंबर 65 पे इसका आंसर है। डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपका यूनिट 4 में से ही लिया गया है और ये आपके बुक के पेज नंबर उर्दू की बुक के पेज नंबर 72 to 73 है। डेफिनेशन जो दी है आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, उसी को ही एक्सप्लेन करना है आपने। डिफाइन एलोट्रॉपी, ये एलोट्रॉपी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है यूनिट 5 का। नेक्स्ट है वाई आर द डेंसिटीज़ ऑफ गैसेज लोअर दैन दैट ऑफ लिक्विड, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है यूनिट 5 का। नेक्स्ट यूनिट 6 के 3 क्वेश्चन आ गए हैं। डिफाइन एक्वस सोल्यूशन, ये आपकी इंग्लिश की बुक के पेज नंबर 97 पे है और उर्दू के बुक के पेज नंबर 113 पे है। नेक्स्ट आपका है जी एलोट्रॉपी के बाद कि वाई आर द डेंसिटीज़ ऑफ गैसेज लोअर दैन दैट ऑफ द लिक्विड। हाँ जी, ये जो है आपका है sorry, I am discussing question number 7. What is difference between dilute and concentrated solution, ये बुक के पेज नंबर उर्दू के बुक के पेज नंबर 115 पे है। उसके बाद डिफाइन मोलैरिटी आपके छोटी सी डेफिनेशन है जी यूनिट 6 की, उर्दू के बुक के पेज नंबर 118 पे है और इंग्लिश के बुक के पेज नंबर 101 पर मौजूद है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है उस ये हमने 7 और 8 में से लिए हैं। 4 क्वेश्चन यूनिट 7 से लिए हैं, 4 क्वेश्चन यूनिट 8 से लिए हैं। पहला है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका यूनिट 7 में से है और यूनिट 7 की बुक के पेज नंबर उर्दू की बुक के पेज नंबर 138 है और इंग्लिश का 118 है। अगला देखें डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 7 का नाम ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए कि आपका जो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है ना यूनिट 7 जैसे स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वहाँ पे है, तो ये वहाँ से आप डेफिनेशन कर सकते हैं। वाई इज़ एन आयरन ड्रिल पेंटेड फ्रिक्वेंटली, ये क्वेश्चन, और वाई इज़ ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रस्टिंग, ये दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज में से दिए गए हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 17 है और दूसरा 18 है। नेक्स्ट है राइट एनी 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ये आपकी यूनिट 8 आ गया जी। यूनिट 1 की बुक के पेज नंबर इंग्लिश की बुक के पेज नंबर 139 पे इसका आंसर है और उर्दू की बुक के पेज नंबर 159 पर इसका आंसर है, ठीक है जी। डिफाइन इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ये आपका उर्दू की बुक के पेज नंबर 160 पे है और इंग्लिश की बुक के पेज नंबर 140 पर है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई आर द सिल्वर एंड गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव, तो ये जी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। यूनिट 8 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 है वाई इज़ कॉपर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर, तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है यूनिट 8 का, ठीक है जी। और यहाँ पे ये उर्दू में भी पोर्शन 3 वाला आपको प्रेजेंट करें और पोर्शन 4 वाला प्रेजेंट करें, ठीक है जी। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। हाँ जी, लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला है हाउ डिड बोर प्रूव दैट एन एटम मस्ट एग्जिस्ट, ये आपका यूनिट 2 में से क्वेश्चन लिया गया है। यूनिट 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। उसके बाद सेकंड जो है वो आपकी एग्जांपल दी हुई है, कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूल इन 40 ग्राम ऑफ H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक एसिड का आपने बताना है।
और ये यूनिट 1 में से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स विद एट लीस्ट वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तो ये आपने कोवेलेंट बॉन्ड्स की टाइप्स देनी है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनिट 4 है आपका। ठीक है जी। 6 का जो भी पार्ट है वो आपका यूनिट 5 में से लिया गया है और वो है डिफाइन एंड एक्सप्लेन चार्जेस ऑफ गैसेस। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट डाउन प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यूनिट 7 का क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज का। और नेक्स्ट आपके पास है राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो ये आपका यूनिट 8 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। उर्दू में भी ये प्रेजेंट हो रहे हैं ये क्वेश्चन, इनको देख सकते हैं आप, इनकी वर्डिंग देख सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।